श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 8 डॉक्टर भारती पवार जी। So with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 8 in today's revised list of business. आइटम नंबर 8A श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में 8A पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 महासचिव जी। Sir, I have to report following messages. One, that Rajya Sabha at its sitting held on 9th August 2023 agreed without any amendment to the Digital Personal Data Protection Bill 2023 as passed by Lok Sabha. Two, that Rajya Sabha at its sitting held on 10th August 2023 agreed without any amendment to the Pharmacy Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. Sir, I have also to report a message from Rajya Sabha regarding election of 10 members from Rajya Sabha to the Committee on Welfare of Other Backward Classes. माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सभा की बैठकों के सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के 10 अगस्त 2023 को सभा में प्रस्तुत अपने 11वें प्रतिवेदन की सिफारिशों की है कि प्रतिवेदन में उल्लेखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? माननीय सदस्यों के तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 11 श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Central Goods and Services Tax Act 2017. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 12 श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Integrated Goods and Services Tax Act 2017. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्यवाही 12:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। 12:30। So, in fact, I'm so glad it doesn't go further. It ends here. No, but she has been like a true friend, and many a times we've had conversations, and she understands various aspects that we have shared together. It stays between both of us, but I'm sure her presence helped us, and our absence will surely do it. For all the 4 members whom we are privileged to have back with us, Dr. Jaishankar, Derek Da, Dola ji, and Shukhendu Da, is going to be a truly a remarkable journey with them in the next few years that we have worked together. Thank you. राजीव शुक्ला। धन्यवाद चेयरमैन सर। देखिए ये सदन तो ऐसा है कि इसमें एक न एक दिन सबको रिटायर होना है। इन दीवारों में, इन छतों
So, Lok Sabha there being adjourned till about 12:30 this afternoon, which means a time period of 30 minutes. Proceedings still continue as far as the Rajya Sabha is concerned. As we pointed out, this is going to be a crucial day because this is the last day as far as the monsoon session of Parliament is concerned. Let's also talk to you about what is the plan as far as the Congress is concerned, because now we are understanding they're planning to protest as far as the suspension of Adhir Ranjan Chaudhary from the House for unruly conduct is concerned. We'll try and get more details in terms of what is the plan as far as the Congress is concerned. But as I pointed out, the Congress is planning to protest the suspension of Adhir Ranjan Chaudhary, which came for unruly behavior and repeated disturbances as well. The Congress President Mallikarjun Kharge has also rigged up the suspension issue in Rajya Sabha, and he slammed Adhir Ranjan Chaudhary's suspension. Earlier today, opposition leaders of the India Alliance held a meeting to discuss the suspension of the leader of Congress in the Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, and discuss the way forward and the way ahead as well. Reportedly, they will also divide and decide a strategy for the way forward in the Rajya Sabha, where their demand for a discussion on Manipur has not been accepted. The suspension motion was brought in by the Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi. जब भी अंधे रहते द्रौपदियों को वस्त्र हरण होना तय होते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर में हुई थी, आज मणिपुर में हो रहे हैं। इसका मतलब मैं किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के अपमान करने के लिए नहीं किया, मैं उदाहरण नजीर की तौर पे आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा हो चुके हैं। मतलब क्या? मतलब मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मिस्टर साइलेंट बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद नहीं। सफाई हमने उसी टाइम मैंने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं कम से कम 10 मिनट का भाषण और किसी का सत्ता पक्ष के जो उत्तर देते हैं, डिबेट को उत्तर देते हैं, प्रश्न को उत्तर देते हैं, कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। तो और हमने बार बार बोला उनको, आप रिकॉर्ड चेक करो, लेट हिम चेक द रिकॉर्ड। करते हैं सभी। अधीर रंजन जी कल बहुत गलत बात किया। किसके साथ किसको कंपेयर करते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? देश का 140 करोड़ लोग देख रहे थे, क्या कहना चाहते थे? वो देश के ऊपर तो ऐसा भाजपा के ऊपर गलत इल्जाम नहीं है, सरकार के ऊपर नहीं है, ये पार्लियामेंट को अपमान करने का कोशिश कर रहे हैं। उसको तो ऐसे करना ही होगा, इसी से बाकी लोग समझ सिखाना होगा।